शुक्रिया। किसी भी भूल पर अपनी, अब सरहद के पार भी सोच सकते हैं इसको, कि किसी भी भूल पर अपनी वो शर्मिंदा नहीं होता, वो मुझ में ढूंढता है जो वो खुद वैसा नहीं होता। और फलक पर नाम तो लिखो, जमीन पर पांव भी रखो। फलक पर नाम तो लिखो, जमीन पर पांव भी रखो। जड़ों से टूटकर कोई शजर जिंदा नहीं होता। करने वाले लोग बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं हमारे शहीद और शहीद की पत्नियों के सम्मान में एक रचना पढ़ना चाहती हूँ कि रात सपने में आ गया था वो, रात सपने में आ गया था वो, मांग उसकी सजा गया था वो। रात सपने में आ गया था वो, मांग उसकी सजा गया था वो। पोंछ आंसू लगा के सीने से, पोंछ आंसू लगा के सीने से, आस फिर से जगा गया था, आस फिर से जगा गया था वो। और सोई बिटिया को प्यार से चूमा। If you don't know me, I'm Isha Feathers Movie, the son of Feather, late Lakshmi Kamada Feathers Movie. So, yeah, some people say that some people's time comes and all of that, but I don't believe in that actually. Yeah, even if my father is gone, I miss his absence. Like, we all, our own family, we miss. These people have remembered these unsung heroes. So a great thank you for that. देखिए, एक बहुत हिंदी की कहावत है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है जहाँ से मैं हुआ हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी से, वो इतनी टफ होती है कि इट मेक्स अ मैन आउट ऑफ अ बॉय। When you enter the academy, you are 16 years old. When you come out, you are 19 years old. But your training is so good, so tough, that you can face the world. So when you face the world, that means you can face the enemy. So we were fortunate enough that we took part in 71 war, and we were trained to fight. And thereafter, whenever the call was made for us to come up to protect our citizens, to protect our property, to protect our assets, we were there on the forefront. I have been in the submarine now for 22 years and have served in the submarine. और I was also fortunate enough to take one yacht, INSV Samudra, around the world in 88-89. I was a skipper, for which I was awarded the Gallantry Award. After retirement in 96, I joined the Navy Foundation as its honorary secretary, which I am there for the past 12 years. And we have about 1185 retired naval officers, member of my foundation, whose welfare activities in terms of pay, pension, medical, widows, etc. is totally looked after by our foundation. We are the one-man contact for them to whatever their problem they face, we get it solved and revert back to them. तो आज जो राम कुमार जी ने जो आयोजन किया, लोगों को एक मंच पर लाके जो सम्मान दिया, तो ये कितना अच्छा उनका कदम था, उनकी जो सोच थी। I think ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो सम्मान देना, हम फौजी किस चीज़ के लिए जीते हैं? हम सम्मान के लिए जीते हैं। हमको पैसे का कोई लालच नहीं है, क्योंकि हम बाहर सर्विस करके और अच्छा कमा सकते हैं। हम सम्मान के लिए जीते हैं, इज़्ज़त के लिए। तो ये जो इन्होंने किया है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप है, और ऐसा स्टेप बाकी संस्थाओं को भी उठाना चाहिए, ताकि हमें ये फीलिंग हो कि हमने जो भी देश के लिए किया है, अपनी मातृभूमि के लिए किया है, उसमें जो सिविलियंस हैं जिनको हमने प्रोटेक्ट किया है, वो हमारे आभारी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
ये बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ पर आके. Well, I must say it was a very well organized program, very well thought of, and I congratulate the organizers for having done this, and I must say they're doing a very honorable job, and you know, respecting the ex-servicemen and other people also. It's a great job done. And if you can talk about yourself for the audience. Well, I'm an ex-captain, Army Dental Corps. I'm a dentist by profession, but then, you know, I shifted to this area after leaving the service, and I found the environment around was in a great problem. People were cutting mangroves. So I'm basically an activist by nature. I couldn't tolerate all this, and I joined a lot of people who were out to do that. So I took the leadership, and we floated one United Citizens of Warsaw group. Then we also floated Advanced Locality Management group, and I'm the chairperson of both these groups. So we connect people to save environment through music. We have a group which also organizes Music for Unity. So we are into this, you know, collecting people, then removing encroachment. My group also files court cases wherever it's not possible to remove the encroachers through BMC. We take help of also our you know, politicians. We involved MLA, MP, corporators. They are quite helpful, and we all work together to improve our environment, to keep our roads clean, to keep our roads encroachment free, and keep our mangroves also free from any encroachment. We had earlier filed a court case, and we were given the fencing of the mangroves. Now also our group is trying, because the fencing has become old now, 10 years old, we are trying to get some funds from the politicians and trying to make the fencing again so that we can protect the mangroves. We keep organizing also mangrove cleaning so that, you know, the mangroves can flourish. Thank you so So much. this is the work I'm doing. It was great and superb, and I'm Commander D.S. Yadav. I have come from New Bombay, and I was on board Vikrant during the 71 war time. And after Navy, I had gone to Merchant Navy and started training for Merchant Navy. Now I am running Merchant Navy School in Khopoli and in Belapur, both the places. I'm also running one CBSE school, 10+2, and also diving school for the first time in Asia I started. And we have got the world standard skating ground, which was inaugurated last year, and in which this Indian team was trained for Asiad by a Italian coach who was winner 7 times gold medal winner. So we are doing a lot for this thing and adding more colleges and schools for the upliftment of the people. Diving academy, we have got the deepest swimming pool in India, that is 18 feet, and most of the film shooting is done, underwater film shooting is done there. With Amir Khan's Talash it started, Shah Rukh Khan's Happy New Year, then Hrithik Roshan Bang Bang, Katrina Kaif, then this Kangana Ranawat, then Sara Ali Khan, this religious movie, and all these things we are doing it there. And every time in a year, about 4 or 5 film shootings take place. People from Telugu films, Bengali films, South Indian film, all these things are coming. And now we are developing sports academy and sports club. Thank you. देखिए, ये एक जिम्मेदारी है कि अगर
भूषण सम्मान मिलता है तो इसके पीछे हम सारे सिटीजन्स को एक मोटिवेशन आता है कि हम और भी मेहनत करें, जितना हो सके कुछ अच्छा अपने देश के लिए करके दिखाएं। मैं बताऊंगा स्वच्छ भारत अभियान जिस तरीके से पूरा भारतवर्ष मिलके जन शक्ति का एक उदाहरण दिया था, उसी तरीके से हमारे गवर्नमेंट ने जल शक्ति अभियान शुरू किया है। और मैं चाहूँगा कि सब लोग जल शक्ति अभियान अपने खुद के लिए करें। पानी जो प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, वर्षा के थ्रू आता है, लेकिन आज हम उसी पानी का 20 रुपये लीटर पे कर रहे हैं। ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि जिस तरीके से आज पानी का दुरुपयोग हो रहा है और पानी को बचाने के लिए हम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, आगे चल के वही पानी आपको 100 रुपये लीटर देना पड़ेगा। जो हालत चेन्नई में हुआ था, हम नहीं चाहते कि और भी किसी शहर में हो पूरे दुनिया में। इसीलिए जल शक्ति अभियान का आप लोग प्लीज़ साथ दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अपने सेहत के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने देश के लिए पानी ज़रूर बचाएं। चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या पानी व्यर्थ जा रहा हो, उसको प्लीज़ रोकिए। हम सब जानते हैं क्या क्या उपाय हैं, लेकिन हम उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। रिक्वेस्टिंग एवरीवन, जन शक्ति फॉर जल शक्ति, पानी बचाइए, जीवन बचाइए। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बचपन से मेरा नृत्य के प्रति जो रुझान था, आज लग रहा है मेरी दूसरी ये पुस्तक है, पारंपरिक नृत्य और सिनेमा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस किताब का विमोचन हुआ है। और इस किताब के विषय में मैं आपको यह बताना चाहूँ कि ये किताब अपने आप में एक बहुत यूनिक किताब है, क्योंकि मैंने बहुत सारे नृत्य पे मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो मुझे कहीं ऐसा किताब नहीं मिला। तो बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि एक ऐसा किताब आए जिसमें नृत्य के ऐतिहासिक पक्ष को लेते हुए, नृत्य के आयाम को बताते हुए कि हर काल में, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जब हुई थी तो उस समय भी हमारे पुरातत्व विभाग का कहना था कि हमें एक नृत्य करती हुई मूर्तियाँ मिली थी। उसके पहले से भी हम लोग सुनते आ रहे हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य किया करती थी। तो मैंने हर काल में इसमें नृत्य को मैंने डिफ़ाइन किया है कि प्रागैतिहासिक काल में, रामायण काल में, महाभारत काल में, बुद्ध काल में नृत्य की स्थिति क्या थी, नृत्य अपने आयाम में कैसे था और कैसे इसका दिन प्रतिदिन रूप इसका बदलता चला गया। और आप लोगों ने शायद देखा होगा, हम लोगों की मूक जो फिल्म थी, पहली मूक फिल्म, उसमें भी हम उस समय की राजा हरिश्चंद्र की फैक्ट्री, राजा हरिश्चंद्र, उसमें भी हमें उस समय का नृत्य देखने को मिलता है। तो हम शुरू से नृत्य, या हमारी पहली बोलती जो फिल्म आई थी आलम आरा, उसमें भी हम नृत्य देखते हैं। उसके बैनर पे ही म्यूजिकल एंड डांसिंग लिखा हुआ है। तो नृत्य हमारे रग रग में है, नृत्य हमारे रोम रोम में है। और आप देखेंगे कि प्रकृति की जितनी भी रचनाएं हैं, हर जगह नृत्य है। चाहे वो नदी की धारा हो, कोयल की कू हो, मयूर का नृत्य हो, हर जगह हर इंसान के एक एक भाव में नृत्य है, लय है, ताल है। हम बात भी कर रहे हैं तो उसमें एक लय है, एक ताल है, एक छंद है। तो नृत्य मुझे हर इंसान के अंदर दिखाई देता है। और मुझे नहीं लगता है कि नृत्य के अलावा कोई और चीज़ दुनिया में, लय के अलावा, क्योंकि पृथ्वी भी एक लय से ही घूम रही है। अगर लय से हर कोई अगर विचलित हो गया तो सृष्टि की कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। तो नृत्य हमारे रोम रोम में है। हमारे शंकर का तांडव हुआ या पार्वती का लास्य नृत्य हुआ, इस तरह नृत्य की उत्पत्ति हुई। और धीरे धीरे आज सिनेमा के माध्यम से हम लोगों के बीच नृत्य का प्रचार प्रसार हुआ है। और इसमें नृत्य का इतिहास है, स्वरूप है, क्लासिकल नृत्य के विषय में जो 8 प्रकार के हैं उसके विषय में है, फोक नृत्य है, भारत की जितने मशहूर नर्तक नर्तांगना हुई हैं उनके विषय में इसमें है, और मॉडर्नाइजेशन के बाद नृत्य ने कैसे अपना स्वरूप बदला है, ये किताब में मैंने एक समाहित करने की कोशिश की है। कार्यक्रम था, बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात जो थी, यहाँ पर जो रिटायर्ड सैनिकों को सम्मानित किया गया, वो बहुत अच्छी बात रही। और उसके साथ साथ जो समाज में, पत्रकारिता में आप जैसे लोग जो हैं उनको भी सम्मानित किया गया, कवियों को सम्मानित किया गया। और बड़े बड़े पद के लोगों को सम्मानित करने के साथ साथ आम जनजीवन में भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको हम कॉमन मैन कहते हैं, उस तरह के लोगों को भी यहाँ सम्मानित किया गया। ये बहुत सराहनीय है। और कुछ बोलना है किसी उन्हीं कार्यक्रम के बारे में, किताब के बारे में? अच्छा, क्या लिखा है किताब के बारे में? आरके पब्लिकेशन की ये किताब है और आरके पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि बड़े बड़े महापुरुषों पर, बड़े बड़े नेताओं पर, देवताओं पर बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, लेकिन कॉमन मैन पर बहुत कम लिखा जाता है। तो ये जो दर्पण की मुस्कान है, ये कॉमन मैन की कहानी है, आम आदमी की कहानी है, झोपड़ी में रहने वाले की कहानी है, खेत में काम करने वाले की कहानी है।
एक सामान्य मनुष्य की ये कहानी है। और इस तरह से जीवन को जब हम एक आईने के, हम लोग अपने आप को आईना समझे, जैसे आपके कैमरे में लेंस लगा हुआ है, उसके सामने मैं बोलता दिख रहा हूँ, ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में दिमाग में एक लेंस लगा हुआ है। आप कैमरे में तस्वीर कैद करते हैं, मैं अपने दिमाग में समाज की तस्वीर कैद करता हूँ, और उस तस्वीर को देखने के बाद मुझे मुस्कुराना आता है। और वही मुस्कान मैंने इस किताब में लिखी है कि जीवन जैसा भी हो मुस्कुराने जैसा है। ठहाका नहीं लगाएं, कोई बात नहीं, रोएं बिल्कुल ना, मुस्कुराएं ज़रूर, इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, तो बहुत पहला एक इस तरह का आयोजन है जो इसमें मैं आया हूँ। और यहाँ सेना के लोगों को, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, उनके जितने भी पूर्व सैनिक हैं जो कार्यरत हैं या जो रिटायर हो गए हैं या जो नहीं हैं, उनके परिवार को भी सम्मानित किया जा रहा है। ये अद्भुत कार्य है। मैं धन्यवाद करूंगा साक्षात फाउंडेशन को जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया है और भूषण पुरस्कार करके सम्मान करके इन्होंने आयोजन किया, जिसमें इस तरह का सम्मान है। कई तरह का साहित्य के लिए भी सम्मान है, कला के लिए भी है और देशभक्त के लिए है, तो मातृ सम्मान है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह का आयोजन हो। अक्सर हाँ ये होता है कि हमारे देश में जो आर्मी के जो लोग हैं, सेना के जो लोग हैं, वो जब रिटायर हो जाते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। तो ये बड़ा अद्भुत कार्य किया है साक्षात फाउंडेशन ने, रामपाल जी और संदीप पांडे ने। और 3 किताबों का विमोचन हुआ है। संदीप कुमार का एक किताब है प्राचीन नृत्य पे, और एक तिवारी जी का किताब है। 3 किताब है। ये देखिए, ये पारंपरिक नृत्य एवं सिनेमा, बड़ा अद्भुत किताब। इस तरह के 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ है और ये भी समाहित है। ये सब एक ही प्रोग्राम में, एक ही आयोजन में सब कुछ समाहित है। ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा कार्यक्रम होगा, बहुत सारी चीज़ों इन्होंने समेट लिया है, लेकिन बहुत ही सुरक्षित ढंग से, बहुत ही समुचित ढंग से, बहुत ही नियोजित ढंग से इन्होंने ये कार्यक्रम किया और मुझे बहुत सुंदर लगा। किसी से सम्मान लेना और किसी को ट्रॉफी देना, ये कितना अलग होता है? जिस तरह से मंच पर अभी आप लोगों को सम्मानित कर रहे थे ट्रॉफी देकर, तो ये कितना अलग एहसास है? देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि मैं अपने देश के सेनानियों को, सेना में जो लोग रहे हैं, उनको मेरे हाथ से सम्मान दिया जा रहा है। तो मेरे लिए तो बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि कभी मेरे पिताजी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आर्मी में थे। तो वहाँ से जब वॉर ख़त्म हो गया, बटालियन डिसॉल्व कर दिया गया, फिर सिविल सर्विसेज में आ गए। उन लोगों को ऑफ़र किया गया कि आप लोग चाहें तो दोबारा आर्मी में आ सकते हैं या सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। मेरे पिताजी सिविल सर्विसेज में गए। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ, उसी पृष्ठभूमि से हूँ कि मेरे पिताजी आर्मी में थे और मैं आर्मी के लोगों को मेरे हाथों द्वारा सम्मानित करवाया जा रहा है। तो ये बड़ा अद्भुत बात है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप एक कलाकार हैं और आपके अनुभव ने हमेशा लोगों के दिलों पे राज किया है। तो आप जिस तरह से आज फौजी के बीच में, आर्मी के बीच में, तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके दिल में हो कि अगर मुझे मिलता है तो मैं उसे करूँगा? देखिए, कोई भी आर्मी में हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, नीचे से ऊपर तक जितने ऑफिसर्स हैं, वो चाहे सिपाही रैंक से हैं या ऊपर तक हैं, चीफ तक, कोई भी रोल उसमें से मिल जाए, कोई भी रोल मिल जाए और वो जज्बा आ जाए मुझे कैरेक्टर करते वक्त, मैं धन्य हो जाऊंगा। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें, कौन सी? मेरी अभी लेटेस्ट सितंबर में एक फिल्म आएगी, झलकी, एक और बचपन ब्रह्मानंद सिंह की फिल्म है और ये ट्रू स्टोरी पे है और इंटरनेशनली बहुत एक्लेम्ड हो रही है। पूरे फेस्टिवल्स में बाहर बहुत अवार्ड्स मिले इनको। कैलाश सत्यार्थी जी ने जो बाल मजदूरों के लिए जो काम किया है और बहुत से बच्चों को, लड़के और लड़कियों को उन्होंने छुड़वाया है, उस पर ये फिल्म है और अच्छी फिल्म बनी है। मेरा ख्याल है लोग इसे देखेंगे, सराहेंगे। झलकी, एक और बचपन, 27 सितंबर को आ रहा है ये। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 370 और 35 ये जब हटाया तो हमें लगा हमें भी कुछ करना चाहिए, तो क्या करें। 2 दिन बाद 17 अगस्त को हमने रखा उसके संकल्प में सैनिकों का सम्मान,
और वरिष्ठ हैं, 3 युद्ध में लड़े हुए लोग हैं, 7 जन मरणोपरांत थे इसमें। तो इस प्रेरणा से हमने ये सम्मान किया। आप बताइए, बोलिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप यहाँ पे जो सम्मान आर्मी लोगों को सम्मान दिया गया था, एक अलग ही प्रोग्राम देखने को मिला, तो आप किस तरह देख रहे हो और कितना अच्छा लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम में आना होता है? हमारे भाई साहब राम भाई साहब हैं, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया है जो आज तक बॉम्बे में किसी ने नहीं किया होगा, इसलिए हमको ऐसे लग रहा है कि लोग इस तरह से उत्साहित हों और इसी तरह लोग जुड़े रहें इनसे भाई साहब के साथ। बस ये मेरी शुभकामना इनके साथ। धन्यवाद। बड़े राम भाई, सर, जिस तरह से आप बहुत सारे अवार्ड्स के लिए प्रोग्राम करते हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग सोच के साथ, तो ये सब आप किस तरह से सोच रखते हैं? क्योंकि कभी किसी और प्लेटफॉर्म के लोगों को आप सम्मानित करते हैं, कभी किसी और, तो ये इतने सारे आइडियाज आप कैसे लेकर आते हैं? बस भाव है लोगों का सम्मान करना, और लोग आगे बढ़ते हैं, लोग जुड़ते हैं। और अभी 28 तारीख को तो बड़ा अवार्ड आपको मालूम है 100 NGO का है हरे राम हरे कृष्णा में। तो सारे NGO के साथ जुड़ना रहना और एक भाव लगन है। तो इतने सारे लोगों को एक मंच पर लेकर आना, खास करके नेवी और आर्मी के लोगों को, तो ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए? इसमें हमने उनके चीफ कमांडेंट को पकड़ा और उनके पास तो 5000 लोग थे अवार्डी, तो भी हमने शॉर्ट 40 लोगों को लिया और नेक्स्ट करने का प्रयास करेंगे। 5000 एकदम और अचानक सोचा हुआ कार्य था, विदिन 7 दिन के अंदर कार्य किया था। सर, डू यू थिंक जो वॉर में हैंडीकैप हो जाते हैं उनके लिए भी मतलब ऐसा कोई सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं? अगर कुछ सर इस बारे में बात करना चाहें। नहीं, जरूर संस्था से बात हुई है, इनकी यूनियन है आर्मी एक्स मिलिट्री मैन की, उनके थ्रू ही होगा ये। हम इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते और कोई आता नहीं है। ये जो सभी थे उनके हेड ऑफ जो चीफ हैं उनके थ्रू आए थे सब, और उनसे हम कहकर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सारे मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। एक्चुअली आज सबसे पहले तो मैं इनका बहुत धन्यवाद कहूँगा कि सेना के उन जवानों को, सेना के उन अधिकारियों का आज सम्मान किया गया है जो वास्तव में कितनी जानें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अभी हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और मैं खास तौर से आप लोगों से, जो कि चतुर्थ स्तंभ हैं हमारे समाज का, सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ यानी पत्रकारिता, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम देश में अब हजारों जवानों की जान बचाना चाह रहे हैं। उसके लिए पहली बार हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। आप जानते होंगे कि 65% जनता 35 साल से नीचे की आयु की है, और उड़ता पंजाब पुरानी पिक्चर हो गई, लेकिन आज हर शहर के अंदर ये जो ड्रग एडिक्शन का एक गंदा काम है वो सब जगह शुरू हो गया है। इतने सारे बच्चे और बड़े इसका शिकार हो गए हैं। पहली बार मुझे गर्व है कि हमारे कुछ अधिकारी, IG कोंकण रेंज श्री नवल बजाज, SP थाने रूरल डॉक्टर राठौड़, इन सब ने मिलकर एक नया प्रोग्राम बनाया है, ट्रिपल एक्शन अटैक, जिसके तहत हम एंटी ड्रग एडिक्शन फाइट कर रहे हैं। अभी तक मैं करीब 700 मीटिंग कंडक्ट कर चुका हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एंटी ड्रग एडिक्शन की लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस से हमने निवेदन किया और पुलिस ने शुरू कर दिया है कि जो ड्रग एडिक्ट होते थे पहले उनको बिहाइंड द बार्स भेजा जाता था, अब उस जगह भेजने की बजाय हमने जगह जगह पुलिस सेंटर्स पे भी काउंसलिंग सेंटर्स बना दिए हैं ताकि उन बच्चों को वापस संभाला जाए। मैं खुद एक एडिक्ट था, 2011 में एडिक्शन इस कदर गंदा चला गया कि मैंने सुसाइड कमिट किया, लेकिन बच गया। मुझे किसने बचाया? बुजुर्गों ने और पुलिस ने। उसके बाद जब मुझे उस गंदगी में से बाहर निकाल दिया गया तो मुझे, जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, कहाँ नौकरी मिली? प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में मुझे डायरेक्टर बनाया गया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, नशा करने वाले से घृणा मत कीजिए, नशे से घृणा कीजिए। और मैंने आदरणीय मोदी जी को भी एक निवेदन भेजा है व्यसन मुक्त भारत अभियान चलाने का। मैं चाहता हूं कि व्यसन मुक्त भारत अभियान आप लोगों के माध्यम से, चतुर्थ जो स्तंभ है हमारे समाज का सबसे जिम्मेदार, आपके माध्यम से अगर ये व्यसन मुक्त भारत अभियान चलेगा तो वास्तव में हजारों घरों में, लाखों घरों में ये खुशियां वापस आएंगी, चाहे वो गुटखा हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो या ड्रग्स हो। कोई इंसान उसका गुलाम बनता है तो वो गलत है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, उसके लिए आप लोग साथ दीजिए प्लीज़।